हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने SN1 कंप्लीट किया था। तो वी हैव सीन व्हाट इज SN1, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट SN1, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 ऑफ अल्कील हैलाइड अल्कोहल्स एंड ईथर्स, और फिर उस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकंड टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज SN2, and it is also called as substitution nucleophilic bimolecular. Now students, अगर आपको याद होगा तो substitution reaction के basics में मैंने बताया था, so there are three pathways. पहला कि living group will move out and then nucleophile will attack. ये जो mechanism होता है that is called SN1. फिर मैंने बताया था नहीं, nucleophile will attack first then living group will move out. तो ये तो valid ही नहीं है because in that case carbon will have 5 valency. And third was there is a simultaneous attack of nucleophile and exit of living group. So that is called SN2. So what is SN2? Whenever you have alkyl halide RX and you react it with a nucleophile NU in such a way that the nucleophile, the attack of nucleophile and exit of living group take place simultaneously. So this will be your transition state. This will be your transition state. अगर ये आपका transition state है, so finally what will happen? जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनता जाएगा वैसे वैसे X will move out and you will get R and U. So this reaction take place in a single step. This is a single step reaction, है ना? So SN2 is a what? SN2 is a single step reaction. It is a single step reaction. So very important to note that SN2 is a single step reaction. And in this case you can see as it is a single step reaction, that step itself will be RDS. So student, can you tell me that rate of this reaction? Can I say the rate of this reaction is directly proportional to what? When the reaction is taking place, RX पे nucleophile attack कर रहा है to form transition state. तो two molecules are interacting. कौन? RX and nucleophile. तो RX के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल के भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. सो रेट दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट? RX प्लस न्यूक्लियोफाइल. सो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू K RX into Nu minus. So as you can see, it is order of this reaction is order of reaction is 2, or it is bimolecular because two molecules are involved during RDS. So molecularity of RDS is order, है ना? So molecularity generally, it's not always. So molecularity of reaction is 2, है ना? So that's why it is called SN2. So SN2 कहने का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है and it is a bimolecular reaction. Clear? ठीक है, ये तीन बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं. ठीक है, ये तीन बातें पहले लिखिए आप, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. डन स्टूडेंट्स? अब देखो, एक इसका मैकेनिज्म समझते हैं स्टूडेंट. मैकेनिज्म, सो मैकेनिज्म ऑफ दिस इज व्हाट? न्यूक्लियोफाइल व्हेन रिएक्ट विथ एनी RX, मान लेते हैं हमारा RX जो है इट इज कुछ ऐसा है, दिस इज द लिविंग ग्रुप Lg. Suppose this is CH3
थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री पे भी बात कर ले, इसके लिए आई हैव टेकन अ कायरल सेंटर C2H5 एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले स्टूडेंट इन दिस केस व्हाट हैपेंस, देखो दिस इज द लिविंग ग्रुप। अगर न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना है, नाउ बिकॉज दिस हेलोजन हैव डेल माइनस एंड दिस कार्बन हैव डेल प्लस, सो न्यूक्लियोफाइल कैन कम एंड अटैक ओवर हियर। ये इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर सकता है। अब स्टूडेंट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इफ दिस इज द अरेंजमेंट, nucleophile cannot approach from the side in which X is there, because X itself have a huge electron density. Nucleophile, if it will come from the side X is there, so it will be repelled back, it will not be able to form bond. तो सबसे पहले स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये होता है कि जब कभी आपका SN2 रिएक्शन होगा, एक बात ध्यान से समझिए, if suppose this is X, so this is bonding orbital है ना, this is bonding orbital और इसका एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहेगा। क्लियर? Now if nucleophile wants to attack on this carbon atom, अब carbon atom पे attack means what? It have to give its electron to this carbon atom. If this nucleophile have to give its electron to this carbon atom, तो ये ऑर्बिटल में जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। अब ये इधर न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट कम एंड अटैक एंड गिव इलेक्ट्रॉन टू दिस ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन देना भी है तो एंटी बॉन्डिंग लोब में देना है, एक छोटा सा लोब पे जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो वहां इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना स्टार्ट करेगा। तो इस केस में जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई स्टार्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन को स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल लूज एंड कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? एंड दिस विल बी CS3, दिस इज C2H5, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज X। नाउ X और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटता जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, this is transition state, and now this transition state is unstable because carbon have huge crowding around it, है ना? Transition state. So this transition state will be unstable if the group present on the carbon atom is too huge, है ना? So stability of this transition state will decide the rate of reaction. So stability of transition state will decide rate of reaction. And now student, this transition state will be unstable if the group attached to the carbon atom, chiral carbon, is highly sterically crowded. Transition state is unstable if it is sterically crowded. If it is sterically crowded. So this is the first thing that will happen. Okay? And finally transition state say what you will get? You will get, so students, from this transition state, now when nucleophile will attack, what you will find? You will find this X will move, है ना? Now student, when X will move, now try to understand. Suppose the nucleophile and the living group have same priority, है ना? उनकी प्रायोरिटी नहीं बदल रही है। अगर एक नंबर प्रायोरिटी का लिविंग ग्रुप निकल रहा है तो न्यूक्लियोफाइल की भी अगर प्रायोरिटी 1 है तो देखते हैं क्या होता है। सपोज अज्यूम करो कि X की प्रायोरिटी 1 है, C2H5 will get second priority, CS3 will get 3 and hydrogen will get 4, है ना? तो अगर आप ये देखेंगे तो 1 2 3 is clockwise, so this is R, है ना? Now when nucleophile will attack, now first try to understand when nucleophile will attack, जैसे assume कर लो स्टूडेंट्स कि मेरा कायरल सेंटर है और इस कायरल सेंटर पे सपोज कि I have this is red, this is black, this is blue and this is black marker and this is blue marker, है ना?
assume करो कि this black one is CH3, this red one is C2H5 और ये जो छोटा सा पतला पैन है this is hydrogen and this blue is the living group, है ना? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? अब assume करो कि this nucleophile wants to come and attack on this chiral carbon. अब ये black one cannot attack from this side because this itself is an electron cloud rich center. अब अगर यहां पर अटैक करेगा तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस टू अटैक. क्लियर है? अब ये अटैक नहीं कर सकता है, सो वी नो कि अटैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इट हैव टू अप्रोच फ्रॉम अपोजिट साइड. अब ये जो अपोजिट साइड अटैक है स्टूडेंट, ये अपोजिट साइड अटैक है. अभी हमने देखा है कि अपोजिट साइड अटैक मींस व्हाट? इट विल अटैक ऑन व्हाट? इट विल अटैक ऑन द एंटी लॉग ऑफ anti-bonding log of this CX bond. ये इसका बॉन्डिंग लोब है, यहां पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, ये इसका एंटी बॉन्डिंग है. सो न्यूक्लियोफाइल विल कम एंड अटैक ऑन दिस एंटी बॉन्डिंग लोब, क्योंकि इसके लिए देना आसान हो जाता है. तो इस अटैक को क्या बोलते हैं? दिस अटैक इज कॉल्ड एज बैक साइड अटैक. लिविंग ग्रुप जहां से निकल रहा है उसके पीछे से आके अटैक करेगा, दिस इज कॉल्ड एज बैक साइड अटैक. क्लियर है? अब एज्यूम करो कि ये आने लग गया, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाने लग गया, तो स्लोली जैसे ये इसके साथ बॉन्ड बनने लगेगा, दिस बॉन्ड विल स्टार्ट ब्रेकिंग, है ना? ये जैसे जैसे अंदर आएगा वैसे वैसे ये कैसा बॉन्ड टूटने लगेगा. अब जब ये अंदर आएगा तो दिस स्ट्रक्चर विल बी लिटिल प्लेनर. ये जो तीन है वो एक प्लेन में आ जाएंगे, है ना? दिस विल बी दैट. अब ये जब बाहर निकलेगा पूरी तरह से तो दिस बॉन्ड विल बी फॉर्म. अब ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा तो इनिशियली which was like toward the observer and which was away from observer, तो लिविंग ग्रुप के निकल जाने के बाद और न्यूक्लियोफाइल के आने के बाद स्टिल जो टुवर्ड द ऑब्जर्वर था दैट विल रिमेन टुवर्ड द ऑब्जर्वर, और जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर था दैट विल रिमेन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. सो व्हाट यू विल गेट स्टूडेंट ओवर हियर इज द स्ट्रक्चर यू विल बी गेटिंग ओवर हियर इज दिस इज CH3, दिस इज कार्बन, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज C2H5 and this is called hydrogen. This will be hydrogen. अभी अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो this will be 1, this is 2, this is 3, this is 4. तो कॉन्फ़िगरेशन देखो, this is एंटी क्लॉकवाइज, so this is S. तो स्टूडेंट अगर आपने R लिया है, so what you are getting S. अगर आपने S कॉन्फ़िगरेशन लिया होता, मान लिया CH3 यहां, C2H5 यहां, तो ये 1 2 3 होता, तो फाइनली आपको क्या मिलता? 1 2 3 मिलता, तो 1 यहां आ जाता. This was 3, this is 2, 1 2 3, आपको क्या मिल जाता? क्लॉकवाइज. तो आपने R लिया है तो you are getting S. Similarly, if you have taken S, आपको क्या मिलेगा? R. So in this case, you get inversion of configuration. What we get? We get inversion of configuration. तो SN2 पे inversion of configuration होता है, and this is also called as Walden inversion. Walden inversion के नाम से जाना जाता है by the scientist who discovered this inversion. कि जब कभी SN2 रिएक्शन होता है तो SN2 रिएक्शन होते समय what we mechanism इस तरह से है कि nucleophile have to attack from back side. So this attack is also called as back side attack. So the mechanism is back side attack of nucleophile. न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड अटैक करेगा. अब जब बैक साइड अटैक करेगा तो बैक साइड अटैक करने के कारण X विल मूव आउट एंड न्यूक्लियोफाइल विल कम इन, है ना? अब ये बैक साइड अटैक होने के कारण देयर इज अ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन. अच्छा, तो एक फोर्थ पॉइंट यहां लिखेंगे हम इस जगह पे कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस. व्हाट? Inversion of configuration take place. अच्छा, SN1 में क्या होता था स्टूडेंट? SN1 में SN1 used to give racemic mixture, है ना? जिधर से निकल रहा है उधर से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता था और जिधर से निकला उसके अपोजिट साइड भी अटैक कर सकता था. सो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक था, है ना? SN1 was non stereo specific. So inversion of configuration, or it is called as Walden inversion. Clear? Acha. So can you comment on the nature of this type of reaction?
इज इट स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन? यस। अगर आपने R लिया तो यू आर गेटिंग S, इफ यू आर गेटिंग S, अगर आपने S लिया तो यू विल गेट R। तो प्रोडक्ट का टाइप विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द रिएक्टेंट यू हैव टेकन, है ना? सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। सो द फिफ्थ पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड इन SN2 इज इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। क्या ये स्टीरियो सेलेक्टिव है? नो, इट इज नॉट स्टीरियो सेलेक्टिव, नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव, क्योंकि दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस ही नहीं है, केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा और अटैक विल ऑलवेज बी फ्रॉम बैक साइड, फ्रंट साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल। सो दिस SN2 इज व्हाट, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आई वांट इज कि अभी तक जो भी हमने लिखा है आप उतना तो लिख लो। हमने क्या देखा? देखो, बहुत सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है कि SN2 के टाइम पे इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट बनता है और फिर लिविंग ग्रुप निकल जाता है और लिविंग ग्रुप निकल जाने के बाद न्यूक्लियोफाइल R से अटैच हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म को हमने यहां पर दिखाया है कि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है आपके अल्किल हैलाइड पे, एक ट्रांजिशन स्टेट बना है। इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी विल डिपेंड्स ऑन व्हाट, कि कितना ज्यादा क्राउडिंग है इस कार्बन के अराउंड, बिकॉज ड्यू टू क्राउडिंग दिस विल बिकम हाईली अनस्टेबल, है ना? तो हाईली अनस्टेबल है तो इसकी स्टेबिलिटी, जितना स्मॉल ग्रुप जुड़े होंगे उतना ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी रहेगी। क्लियर है? और एंड वी हैव सीन कि whenever SN2 will take place, it depends on what Rx and nucleophile both. So its order is 2 and its molecularity of the reaction is 2, and inversion of configuration take place. This is called as Walden inversion and this is a stereo specific reaction. अगर आपने R reactant लिया है तो प्रोडक्ट you will be getting SS, and अगर आपने S लिया है तो प्रोडक्ट you will be getting SR if stereochemistry or stereogenic center carbon is retained. Clear है? So pause the video and take it down fast. Done? So these are the 6 points. Have you taken? पहला पॉइंट क्या लिखा है हमने? SN2 is a single step reaction. Rate of reaction is equal to K concentration of Rx into NU. So rate of reaction will depends on what? It will depends on concentration of Rx as well as NU, है ना? SN1 में कैसा था? It was depends on concentration of Rx. अगर आप concentration of nucleophile को डबल भी कर देते थे, ट्रिपल कर देते थे, फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहां अगर आप रेट को डबल करेंगे तो आपका अगर न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट डबल हो जाएगा। अच्छा, दोनों को डबल करेंगे तो रेट विल बिकम 4 टाइम, 2 into 2, 4 बार बढ़ जाएगा, है ना? Molecularity of the reaction is 2, inversion of configuration take place and these reactions are stereo specific reaction. ठीक है? क्लियर है? इतना तक क्लियर है? ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर इज द फिफ्थ पॉइंट वी हैव टेकन। 5 इंपॉर्टेंट बातें हम लोग SN2 के बारे देख चुके। 6th पॉइंट इज नो कार्बोकैटायन इज फॉर्मेशन, नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, है ना? नो कार्बोकैटायन is formed, no carbocation is formed, so no rearrangement. यहां पर रीअरेंजमेंट का कोई मौका ही नहीं रहेगा क्योंकि कार्बोकैटायन कहीं फॉर्म ही नहीं हो रही है। SN2 के केस में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है ना? ओके। any other factors that will affect SN2 को, और ऐसी कुछ बातें आप SN2 पे सोच सकते हैं which will affect the rate of SN2 के रेट को और कौन इफेक्ट करेगा? तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले रेट ऑफ, चलिए एक यहां बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2। तो स्टूडेंट सबसे पहले सबस्ट्रेट, क्योंकि सबस्ट्रेट अगर बहुत बल्कि है, आप समझो आपके पास बहुत बल्कि ग्रुप्स हैं और ये आपका लिविंग ग्रुप है,
तो न्यूक्लियोफाइल का आ पाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये बल्कि ग्रुप विल स्टॉप एंड एज वी हैव सीन कि ट्रांजिशन स्टेट पे ये 5 बॉन्ड्स बनाते हैं, तो जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा उसका ट्रांजिशन स्टेट उतना अनस्टेबल होगा और पिक उतना बड़ा हो जाएगा एंड डेफिनेटली दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अटेन। तो सबस्ट्रेट जो है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट इज डिसाइड we need what? Unhindered substrate. Unhindered substrate. तो कैन आई से 1 डिग्री, इनफैक्ट मैं बोलूंगा 0 डिग्री, CH3X का रेट जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री, और 3 डिग्री के केस में तो आपको SN2 देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, है ना। जितना ज्यादा सबस्ट्रेट अनहिंडर्ड है, अगर आपके पास CH3X है, फिर आपके पास CH3CH2X है, फिर आपके पास CH3CH3X है, एंड एट लास्ट इफ यू हैव CH3CH3 एंड X, तो इस केस में न्यूक्लियोफाइल का आ पाना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज दिस बल्की ग्रुप्स, है ना। इस केस में न्यूक्लियोफाइल का आना बहुत आसान होगा बिकॉज हाइड्रोजन इज वेरी स्मॉल एंड इट कैन अटैक। सो द रेट ऑफ द रिएक्शन इज दिस ग्रेटर देन दिस, है ना। CH3 ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। इट इज क्लियर। तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, जितना सबस्ट्रेट आपका जितना ज्यादा अनहिंडर्ड रहेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां जो आपको बताना चाहूंगा इनफैक्ट, जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको यहां पर कि एक इंपॉर्टेंट यहां कंसेप्ट ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आपके पास दिस इज देयर और मैं वो कहूं कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ SN2 फॉर दिस, क्या इट विल गो फॉर SN2 और इट विल गो फॉर SN1? देखो SN1 के लिए नहीं जाता है, वी हैव सीन, बिकॉज कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन 1 डिग्री पे मुश्किल है, तो ये SN1 के लिए नहीं जाता है। डू नॉट go for SN1 as primary carbocation is formed। आप अगर फोर्स करेंगे इसको जाने के लिए तो आपको कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। तो क्या ये SN2 के लिए जाता है? क्योंकि यहां पर आपके पास यू हैव हाइड्रोजन, यू हैव X, एंड यहां पर यू हैव अ वेरी बल्की ग्रुप CH3 एंड CH3। तो स्टूडेंट, दो यहां पर वी कैन सी दिस इज 1 डिग्री कार्बन एटम, बट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज हिंडर्ड, सो इवन इट डू नॉट गो फॉर SN2। ये याद रखना, यहां हम मिस्टेक करते हैं, हमें लगता है कि 1 डिग्री है तो रेट ऑफ रिएक्शन SN2 के लिए फास्ट होगा, बट यहां पर SN2 नहीं होता है। क्लियर? तो सबस्ट्रेट का नेचर जो है दैट विल डिसाइड द रेट ऑफ SN2। सबसे पहली बात, SN2 किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जितना ज्यादा अनहिंडर्ड होगा SN2 होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा हिंडर्ड होगा होने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। क्लियर है? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल। आपने लिख लिया। नाउ सेकंड थिंग इज लिविंग ग्रुप। अच्छा, सबसे पहले सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा क्या? 100%, बिकॉज रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Rx इंटू NU, है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर हाउ हिंडर्ड सबस्ट्रेट इज देयर, एंड इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। लिविंग ग्रुप, वी नीड अ गुड लिविंग ग्रुप, है ना, गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि फाइनली Lg को बाहर निकालना है, तो वी नीड अ गुड लिविंग ग्रुप।
जितना ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, रेट ऑफ SN2 उतना फास्ट होगा। मतलब SN1 के लिए वी नीड गुड लिविंग ग्रुप, इवन फॉर SN2 आल्सो वी नीड अ गुड लिविंग ग्रुप। Better the living group, better will be the rate of reaction. Third point is, what factor is concentration of Rx and Nu minus. अच्छा, now nature of Nu, न्यूक्लियोफाइल किस तरह का चाहिए स्टूडेंट्स? यहां पर न्यूक्लियोफाइल वी नीड, जितना स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा अटैक उतना आसान होगा, है ना? तो हमें अच्छा न्यूक्लियोफाइल चाहिए, गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल, बेसिक नहीं चाहिए बट वी नीड गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल। जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल, रेट ऑफ SN2 उतना अच्छा। अब न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे SN1 डिपेंड नहीं करता था बट SN2 डिपेंड करता है। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स दैट वी हैव सीन व्हिच अफेक्ट SN2। 6 पॉइंट्स पहले देखे थे, certain point for SN2, and now we are seeing the factors affecting what? SN2 reaction. So उसमें 4 इंपॉर्टेंट बातें देख ली हमने। कौन कौन सी 4 इंपॉर्टेंट बातें देख ली? It depends on concentration and reactivity of substrate and nucleophile. It depends on what? Living group ability, and it depends on concentration of Rx and Nu. Okay. Any other factor do you think which will affect rate of SN2? चलो थोड़ा सॉल्वेंट पे डिस्कस करते हैं। What? थोड़ा सॉल्वेंट पे डिस्कस करते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सॉल्वेंट पे डिस्कशन। चलो मैं पूरा बोर्ड को रब करता हूं, क्लीन करता हूं, बिकॉज सॉल्वेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर हियर। तो स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN2। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN2। SN1 के लिए कैसा सॉल्वेंट चाहिए था? पोलर प्रोटिक। जितना ज्यादा पोलर प्रोटिक हो रहा था, रेट ऑफ SN1 उतना ज्यादा हो रहा था। अब SN2 के लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज लिटिल क्रिटिकल ओवर हियर। इस बात को समझने का ट्राई करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN2। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। जनरली बुक में लिखा रहता है कि रेट ऑफ SN2 इंक्रीज विथ पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ती है, रेट ऑफ SN2 डिक्रीज होता है, एंड जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ती है किसी सॉल्वेंट की, SN1 इंक्रीज होता है बट SN2 डिक्रीज होता है। एंड इन दिस केस वी नीड व्हाट? पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट। रेट ऑफ reaction increase with polar or protic solvent. अब but this is not always true। अब मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझने का ट्राई कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझने का ट्राई कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, ध्यान से समझो। अभी यहां 2 केसेस है स्टूडेंट्स, देयर आर 2 डिफरेंट केस जो मैं आपको बता रहा हूं। आपने लिया है Rx और आपने लिया है न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस, है ना? अभी Rx, जनरली Rx में डेल माइनस और डेल प्लस होगा। ये एक्चुअली न्यूट्रल ही होता है, बट यहां पर थोड़ा पोलराइजेशन हो जाता है ना, न्यूट्रल एंटिटी विथ स्मॉल पोलराइजेशन, स्मॉल पोलराइजेशन। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज, इट मे बी चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड एंटिटी, नेगेटिवली चार्ज्ड एंटिटी, और इट मे बी न्यूट्रल। हमने देखा है स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं ना। अब ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, सिंपल है बट ध्यान से समझने की जरूरत है ना। अब ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है
तो इसका चार्ज कम होने लगता है ना, बिकॉज ये अपना इलेक्ट्रॉन को देने लगता है R को, कार्बन को, है ना। और ये जो है पोलराइजेशन वो इंक्रीज होता है और X के तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है ना। न्यूक्लियोफाइल अपना चार्ज देते जाता है कार्बन को और X में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। एंड फाइनली एट लास्ट व्हाट यू गेट इज you get nucleophile over here and X minus, है ना। So this is your reactant and this is transition state. Reactant, this is reactant and this is transition state. अब ध्यान से समझिए, रिएक्शन फास्ट तब होगा जब सॉल्वेंट का इफेक्ट ऐसा हो कि रिएक्टेंट से ज्यादा वो स्टेबलाइज आपके ट्रांजिशन स्टेट या प्रोडक्ट को करते हैं ना। अगर ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट नीचे आ जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्लियर है? किसी भी रिएक्शन को मैं बोलूं अगर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है तो मैं क्या कहूंगा, अगर ट्रांजिशन स्टेट नीचे है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो अगर कोई ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा है या प्रोडक्ट को स्टेबलाइज कर रहा है, देखिए अगर रिएक्टेंट से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा है तो 100% प्रोडक्ट को भी वो ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट से ज्यादा अगर ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा है तो मैं बोलूंगा वो फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा SN2 के लिए। और अगर वो स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, रादर डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो मैं बोलूंगा वो फैक्टर सपोर्ट नहीं करेगा, है ना। अब स्टूडेंट हमारे पास सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं तीन तरह के, एक तो नॉन पोलर, दूसरा पोलर प्रोटिक और तीसरा पोलर अप्रोटिक। अब स्टूडेंट नॉन पोलर हैव नो इंटरेक्शन विद एनी चार्ज और अनचार्ज्ड एंटिटी, तो नॉन पोलर का तो कोई सवाल ही नहीं आ रहा है। नॉन पोलर किसी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा, ना नॉन पोलर का ट्रांजिशन स्टेट वाले एंटिटी से किसी तरह का इंटरेक्शन है, ना इनसे इंटरेक्शन है, तो नॉन पोलर देखने का कोई सवाल ही नहीं है ना। नॉट एप्लीकेबल NA, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अब देखो अगर आपने पोलर प्रोटिक लिया है, आपने पोलर प्रोटिक लिया है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने पोलर प्रोटिक लिया है, पोलर प्रोटिक लिया है और अज्यूम करते हैं, अभी दो बातें अज्यूम करते हैं। फर्स्ट थिंग इज, पहला करते हैं RX विथ अ न्यूक्लियोफाइल विच इज न्यूट्रल लाइक NH3 और RX with a nucleophile like OH minus which is negatively charged। एंड अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्वेंट को अगर हम चेंज करते हैं, पोलैरिटी को इंक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से बढ़ेगा, है ना। यहां तक क्लियर है व्हाट आई एम सेइंग? ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से एक बार समझ में आ गया तो यू कंसेप्ट क्लियर होगा तो इट विल बिकम वेरी सिंपल। मैं क्या कह रहा हूं कि RX और न्यूक्लियोफाइल, RX will always be neutral entity with small polarization, है ना। अल्कील क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, ये न्यूट्रल एंटिटी होती है, पोलराइजेशन होता है बट स्टिल इट इज न्यूट्रल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो दो तरह का होता है, चार्ज या अनचार्ज। अब इस पे डिपेंड करने वाला है बहुत कुछ। अब मान लो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, मैंने एक मैंने यहां ले लिया है पोलर प्रोटिक और यहां पर भी पोलर प्रोटिक, बट इसकी पोलैरिटी जो है, इसकी पोलैरिटी जो है वो बढ़ रही है ना। ये पोलर प्रोटिक है, अब इसमें मैं इसकी इंक्रीज कर रहा हूं, स्ट्रेंथ जो है उसको इंक्रीज कर रहा हूं, डाइपोल मोमेंट को इंक्रीज कर रहा हूं। ये एक बार समझने का ट्राई करो। अच्छा, दोनों टाइम पे ही हम NH3 लेते हैं पहले और फिर OH माइनस के साथ ट्रीट करके देखेंगे। तो मैंने RX विद NH3 लिया और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, या मैं मान लो आपने सॉल्वेंट 1 लिया है, सॉल्वेंट 1, और यहां आपने लिया है सॉल्वेंट 2, एंड सॉल्वेंट 2 की जो प्रोटिक, पोलर प्रोटिक का जो नेचर है इट इंक्रीजेस, पोलैरिटी इंक्रीजेस। सो पोलैरिटी का ऑर्डर क्या है? पोलैरिटी का ऑर्डर है, पोलैरिटी ऑर्डर इज solvent 2 is greater than solvent 1, है ना।
तो हम पोलैरिटी को बढ़ा रहे हैं, ज्यादा पोलर कर रहे हैं सॉल्वेंट को, तो इसका क्या असर होगा? सबसे पहले स्टूडेंट, अगर मेरा, इफ यू सी इन दिस केस, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल, अब न्यूट्रल एंटिटी है तो इसके साथ इनका रिएक्शन जो होगा वो बहुत कम होगा। सॉल्वेंट, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, तो इसका सॉल्वेशन जो होगा, रिएक्टेंट का सॉल्वेशन नहीं होगा। बट ट्रांजिशन स्टेट में आपको दिखेगा कि ट्रांजिशन स्टेट में इवन इफ इट इज न्यूट्रल, तो ये जैसे सप्लाई करने लगेगा, सप्लाई करने पे इट विल गेट डेल प्लस एंड दिस विल गेट डेल माइनस। इज इट क्लियर? तो सॉल्वेंट will start solvating this transition state. जो सॉल्वेंट रिएक्टेंट को सॉल्वेट नहीं कर पा रहा था, जब रिएक्टेंट थे तो रिएक्टेंट और सॉल्वेंट के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन जैसे ट्रांजिशन स्टेट बढ़ा तो इसका सॉल्वेशन जो है वो बढ़ गया बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द पोलैरिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। पहले दोनों रिएक्टेंट जो थे वो कैसे थे? दोनों के दोनों रिएक्टेंट कैसे थे? अनचार्ज थे, पोलैरिटी जो थी वो ना के बराबर थी, इसकी जो पोलैरिटी थी वो बहुत कम थी और ये न्यूट्रल था, तो इसका इंटरेक्शन सॉल्वेंट के साथ नहीं था। लेकिन जैसे ट्रांजिशन स्टेट बना, इसकी पोलैरिटी जो है वो बढ़ गई है। अब जैसे पोलैरिटी बढ़ेगा तो सॉल्वेंट इसको ज्यादा सॉल्वेट करेगा। अब अगर आपने सॉल्वेंट 1 एक बार यूज किया है और सॉल्वेंट 2 यूज किया है, सो कैन यू टेल मी, देखो सॉल्वेंट 1 सॉल्वेंट 2 का रिएक्टेंट पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन सॉल्वेंट 2 ट्रांजिशन स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज करेगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट 1। एंड कैन आई से rate of reaction increases with increase in polarity of solvent, increase in polarity of solvent। जितना ज्यादा सॉल्वेंट पोलर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना बढ़ जाएगा। अगर, व्हाट आई एम सेइंग, अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूट्रल है। ये बात क्लियर हो गया? प्लीज टेक इट डाउन, लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्लीज टेक इट डाउन। लिख लिया? ओके। अब एज्यूम करो कि मैंने यहां पर OH लिया है, OH माइनस लिया है ना, दोनों जगह पे OH माइनस लिया है। अब बात समझो कि हमारा रिएक्टेंट जो है वो चार्ज एंटिटी है। अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल पे डेल माइनस होगा और ये डेल माइनस होगा। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनिशियली जो फुल चार्ज था उस टाइम पे सॉल्वेंट इसको बहुत ज्यादा डिसॉल्व करके रख रहा है, बट इस ट्रांजिशन स्टेट को डिसॉल्व करके नहीं रख पाएगा अगर आपका पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट है तो आपका रिएक्टेंट ज्यादा सॉल्वेट होगा, वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। और अगर आपने सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ा दी तो उस केस में रिएक्टेंट विल गेट मोर सॉल्वेटेड एंड विल बिकम मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। तो जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा अगर आपका इनमें से न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों में कोई भी अगर चार्ज एंटिटी है तो। क्लियर है क्या मैं कह रहा हूं? समझ में आ रहा है? अगर इनमें न्यूक्लियोफाइल और आरएक्स दोनों के दोनों न्यूट्रल है, न्यूक्लियोफाइल और आरएक्स अगर दोनों के दोनों न्यूट्रल है, न्यूक्लियोफाइल और आपका सबस्ट्रेट विल नॉट ऑलवेज बी आरएक्स, इट मे बी डिफरेंट अदर एंटिटी। तो इनमें से अगर कोई भी दोनों के दोनों अनचार्ज्ड है तो ट्रांजिशन स्टेट पे तो चार्ज बन रहा है, तो पोलैरिटी बढ़ने से ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा अगर दोनों के दोनों अनचार्ज थे और ट्रांजिशन स्टेट आपका चार्ज बन रहा है। लेकिन इनमें से अगर दोनों चार्ज है या इनमें से एक भी चार्ज है तो उसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा पोलैरिटी के साथ एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। तो जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां कैसे बदल रहा है? चार्ज पे बदल रहा है, किसके? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल का। तो मैं यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, आप ये नोट करके रख लीजिए। फॉर SN2 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर SN2 इफ both substrate and nucleophile
are neutral. If substrate and nucleophile are neutral, rate of reaction increase with polarity of solvent, है ना? And if any of them or both of them are charged, है ना? If substrate or nucleophile both are charged, or any one of them is charged, or any one of them have charge, then rate of reaction will decrease with increase in polarity of solvent. तो स्टूडेंट ये डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है? ट्रांजिशन स्टेट को कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। अगर रिएक्टेंट दोनों ही न्यूट्रल थे तो सॉल्वेंट का कोई इंटरेक्शन नहीं है, बट ट्रांजिशन स्टेट हमेशा से चार्ज होता है, तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ेगी तो ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबलाइज होगा। ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है तो इसका मतलब आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। लेकिन इनमें से अगर कोई भी चार्ज था तो चार्ज एंटिटी से जब ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो उस केस में ट्रांजिशन स्टेट के पास कम चार्ज होता है एज कंपेयर टू एक्चुअल चार्ज दैट इज अवेलेबल ऑन सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे जैसे आप पोलैरिटी बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबलाइज होगा एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। तो उस केस में अगर ये ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर ये स्टेबलाइज हो जाएगा तो अटैक कैसे करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है। सो पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, तो ये क्यों लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विथ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट? तो जनरली इसलिए लिखते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि जब आप न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल के साथ इलेक्ट्रोफाइल भी आएगा। तो पोलर अप्रोटिक आपने देखा है, अप्रोटिक कैसा होता है? अप्रोटिक के केस में दिस इलेक्ट्रोफाइल विल बी सराउंडेड बाय पोलर अप्रोटिक बट न्यूक्लियोफाइल विल बी फ्री टू अटैक। तो ये जितना ज्यादा सराउंड हो जाएगा उतना इनके बीच का इंटरेक्शन कम हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल उतना फ्री हो जाएगा और अटैक करने की चांसेस इतने बढ़ जाएगी। बट ये तभी होगा जब न्यूक्लियोफाइल इज चार्ज्ड एंटिटी। तो जनरली SN2 में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो एनायनिक पार्ट होता है SN2 के टाइम पे, और उस केस में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एंड हाउ दिस इज इंक्रीजिंग, इज इट क्लियर? क्योंकि जब कभी आप जैसे Br माइनस लेना चाह रहे हो, है ना, तो आप क्या लोगे? NaBr, Na प्लस प्लस Br माइनस। तो आपको Br माइनस फ्री चाहिए अटैक करने के लिए, लेकिन ये सॉल्वेटेड चाहिए, तो आप कैसा ले लोगे? पोलर अप्रोटिक लोगे, क्योंकि ये कैटायन को सॉल्वेट करेगा, एनायन को सॉल्वेट नहीं करेगा। पोलर अप्रोटिक लोगे तो दोनों को ही सॉल्वेट करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। हमने देखा है कि उनमें से अगर एक भी चार्ज है और दोनों चार्ज है तो पोलैरिटी के साथ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है, लेकिन दोनों न्यूट्रल है तो पोलैरिटी के साथ इंक्रीज होता है। यह बात ध्यान में रख लीजिए। 3 बातें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं सॉल्वेंट इफेक्ट पे। पहली बात कि पोलैरिटी जो है वो कैसा है? पोलैरिटी अगर आपका न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों ही न्यूट्रल हैं तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अगर दोनों के दोनों चार्ज है या उनमें से एक भी चार्ज है तो पोलैरिटी के साथ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। तो जनरली ऐसे केस में हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है, नॉन पोलर का तो कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। तो अप्रोटिक लेंगे तो चार्ज कम हो रहा है, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज दिखेगा, बट पॉजिटिव चार्ज जो है वो सॉल्वेंट पे नहीं इतना इफेक्टिव होगा। तो नेगेटिव विल सॉल्वेट दिस पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूक्लियोफाइल विल बी फ्री टू अटैक एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। क्लियर है? तो ये हो गया सॉल्वेंट इफेक्ट पे। तो SN2 का सॉल्वेंट इफेक्ट इज दिस। ठीक है, लिख लिया सबने? ओके, नाउ स्टूडेंट्स आई विल गिव यू लिस्ट ऑफ some good
nucleophile and some moderate nucleophile and some weak nucleophile right now. So ये लिखिए and then I will give you few list of nucleophiles. Okay, students. So students, I have given you some list of very good strong nucleophile, moderate nucleophile and weak nucleophile. This is in the order of their nucleophilicity. So please take it down and we will discuss it, like why this is strong nucleophile, because we have already seen SH minus, I minus. These are the like this is Cn minus, OH minus, CH3 minus. जहाँ माइनस चार्ज आ जाता है, this become very strong nucleophile. अब phosphorus, why this is? Because phosphorus have a huge size. Similarly, अगर नाइट्रोजन पे 2 इथिल ग्रुप या 3 इथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसकी बेसिस न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. सो टेक इट डाउन. मॉडरेट में Br माइनस इज देयर, NH3 माइनस इज देयर, डाइमिथिल थायोईथर इज देयर, Cl माइनस, एसिटेट आयन. सो टेक इट डाउन. डेफिनेटली विल डिस्कस इट इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लास. तो आज के क्लास में हम यहाँ स्टूडेंट बंद करते हैं. SN2 हमने देखा है. अब इन नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन SN2 एंड देन वी विल सी SN2 ऑफ अल्कोहल, SN2 ऑफ ईथर्स, है ना. सो आज का क्लास यहाँ बंद करते हैं. थैंक यू वेरी मच.